اقوام متحدہ میں امریکہ کی مخالفت کے باوجود غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کثرت رائے سے منظور۔ قرارداد کے حق میں 153 ووٹ پڑے جبکہ 10 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ قرارداد میں جنگ بندی کے علاوہ یرغمال افراد کے غیر مشروط رہائی کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ غزہ میں اسرائیل کی جارحانہ اور وحشیانہ کارروائیوں میں مزید 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے حماس کا ٹھکانہ کہہ کر اقوام متحدہ کے اسکول کو بھی دھماکے سے اڑا دیا۔ 24 گھنٹوں میں فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کے دونوں بدخواس اسرائیلی فوج نے حملوں میں اپنے ہی فوجیوں کو مار ڈالا۔ 13 فوجی فرینڈلی فائرنگ اور 20 فوجی آپریشنل حادثات میں مارے گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم کو خبردار کر دیا ہے کہ غزہ پر بلا تفریق بمباری کے باعث اسرائیل اپنی حمایت کھونے لگا ہے۔ انتخابی مہم کے لیے چند جمع کرانے کی تقریب بھی دوران بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو کو اپنی سخت گیر حکومت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ فوجی عدالتوں میں اب سویلینز کا ٹرائل ہو سکے گا۔ سپریم کورٹ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسنین حیدر۔ میں ہوں عیشا لیاقت۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کر اور خبر آپ کو دیں کہ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مخالفت کے باوجود غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی ہے۔ قرارداد کے حق میں 153 ووٹ پڑے جبکہ 10 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کر دی ہے۔ 23 ممالک نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ ہی نہیں لیا۔ قرارداد میں جنگ بندی کے علاوہ یرغمال افراد کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دینے والے ممالک میں امریکہ، اسرائیل کے علاوہ چیک ریپبلک، آسٹریا، پیراگوئے، پیپوا نیو گنی، لائبیریا اور مائکرونیشیا سمیت 9 جیسے ممالک شامل۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مخالفت کے باوجود غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد کے حق میں 153 ووٹ پڑے جبکہ 10 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی ہے۔ 23 ممالک نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ ہی نہیں لیا۔ قرارداد میں جنگ بندی کے علاوہ یرغمال افراد کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دینے والے ممالک میں امریکہ، اسرائیل کے علاوہ چیک ریپبلک، آسٹریا، پیراگوئے، لائبیریا اور مائکرونیشیا سمیت 9 جیسے ممالک شامل ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے حماس کا ٹھکانہ کہہ کر اقوام متحدہ کے اسکول کو دھماکے سے اڑا دیا۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیل کی جارحانہ اور وحشیانہ کارروائیوں میں مزید 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینیوں کے خلاف جارحیت کے دوران بدحواس اسرائیلی فوج نے حملوں میں اپنے ہی فوجیوں کو مار ڈالا۔ 13 فوجی فرینڈلی فائرنگ اور 20 فوجی آپریشنل حادثات میں مارے گئے جبکہ غزہ سے 2 اسرائیلی مخفیوں کی لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف اور ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین کے کمشنر جنرل فلپ نے اقوام متحدہ کے اسکول پر اسرائیلی حملے پر رد عمل دیتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ شمالی غزہ میں اقوام متحدہ کے ایک اسکول کو دھماکے سے اڑانے کی ویڈیو دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام عوامی مقامات، اسکول اور ہسپتالوں کو بین الاقوامی قوانین کے تحت امان حاصل ہے، تاہم اسرائیل کی جانب سے اسکول اور ہسپتالوں پر حملے بہت ہی غضبناک ہیں۔ خونخوار جنگ میں فریقین کو وہاں موجود اقوام متحدہ کے مراکز کی تمام
तफसीलात दस्तयाब होने के बावजूद स्कूल पर हमला किया गया। इसराइली फौज ने शुमाली गजा के कुमाल उद्वान अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। अस्पताल से तिब्बी अमले समेत मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर आपको दें कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया है। गजा पर बिला तफरीक बमबारी के बायस इसराइल अपनी हिमायत खोने लगा है। इंतखाबी मुहिम के लिए चंदा जमा करने की तकरीब के दौरान बातचीत करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अपनी सख्त गिर हुकूमत को तब्दील करने की जरूरत है। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के कदम पर सस्त सियासतदानों, खासतौर पर इसराइली नेशनल सिक्योरिटी के वजीर अतमार बिन ग्वेल की जानिब से इशारा करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि मौजूदा इसराइली हुकूमत इसराइल की तारीख की सबसे क़यामत परस्त हुकूमत साबित हुई है। नेतन्याहू को अपनी हुकूमत में तब्दीलियां करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये हुकूमत इसराइल के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। हमारे पास एक मौका है कि हम खत्ते को मुत्तहिद कर सकें, और ऐसा करना भी चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू को भी समझना होगा कि इस मौके को मुस्तहकम करने और इसके अलावा कुछ भी इक़दाम लाजिम करना होंगे। वो आलमी दबाव के बाद मुस्तकबिल में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होगा। मलका कोहसार मरी से खबर आपको दें, जहां आमदरफ्त बर्फबारी के हवाले से टूरिज्म स्क्वाड सियाहों की मदद के लिए तैयार हैं, जिनमें मर्द और खातीन एहलकार तैनात होंगे। सियाहों के साथ ज्यादा ओवर चार्जिंग और बिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और साथ ही उनकी रहनुमाई के लिए भी तैयार हैं, जो मरी के 13 पॉइंट्स पर ड्यूटी दे रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे जिया अहमद अब्बासी मॉल रोड पर टूरिज्म स्क्वाड के साथ ही मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी जिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोसार मरी में, और यहाँ पर टूरिज़्म के हवाले से जो है वो स्क्वाड तश्कील दिया गया है, जो आमदा बर्फबारी में जो शहरों को मुख्तलिफ रास्तों में जो है उनको गाइड भी करेंगे और उनकी रहनुमाई भी करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टाफ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि आमदा जो बर्फबारी के हवाले से उन्होंने क्या इकदाम उठाए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे हमने इकदामात ये किए हैं कि यहाँ पे 13 पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारी टीम्स डिप्यूट हैं। अगर कोई भी मसला होता है दाखिली रास्तों की तरफ से तो वो भी आवाम को बताया जाएगा। इसके अलावा माल रोड पे हमारी टीम मौजूद है। यहाँ पे आपको कोई भी मसला होता है, मसलन के कोई ये आपके साथ होता है जैसा कि ये होटल्स वाले कर लेते हैं, किरायों में इजाफा कर देते हैं, या इसके अलावा आपके साथ कोई ओवर चार्जिंग का मसला होता है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन है 1421, और हम आवाम की खिदमत के लिए मेल और फीमेल स्टाफ यहाँ पे डिप्यूट हैं। आप बेखौफ व ख़तर होके आएँ, हम आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। शुक्रिया। जी सर। क्या इकदाम कर रहे हैं आप शहरों के? जी सर यही है जी सर यही है कि इधर किसी को भी किसी किस्म की हेल्प चाहिए होती है, जैसे कि किसी का बच्चा मिसप्लेस हो जाता है या किसी को और कोई मसला आता है, तो हमारा जो स्क्वाड है इधर हर टाइम मौजूद है। मुख्तलिफ पॉइंट पर हमारा स्क्वाड मौजूद है, जैसे कि कश्मीर पॉइंट है, जीका गली है, कुलडन्ना है, माल रोड है। तो हर वक्त हमारा स्क्वाड इधर मौजूद है 24 घंटे। तो किसी भी किस्म की हेल्प किसी स्क्वाड टूरिस्ट को चाहिए तो हमारा स्क्वाड ज़रूर हेल्प करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं बात करना चाहूँगा एहसान भुट्टा साहब जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने हमें एक वीक के लिए रिफ़्रेशमेंट कोर्स दिया है, स्पेशली कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनके हवाले से, कि उनको कोई मसला वगैरह या इस तरह की कोई भी मसला बनता है ना, तो उनके लिए हम इधर खड़े हुए हैं। 13 पॉइंट्स है, जैसे मैम ने बताया कि 13 पॉइंट्स हैं। उसके हवाले से एक वीक का हमें रिफ़्रेशमेंट कोर्स दिया गया है। जैसे स्नोफॉल होती है उसमें काफ़ी हद तक स्नोफॉल इतनी हो जाती है, 3-3 फुट आ जाती है। तो उसके हवाले से हमारे जो नौजवान हैं ना वो इधर तैनात किए गए हैं 13 पॉइंट्स पे। तो रिफ़्रेशमेंट कोर्स इसीलिए दिया गया है कि टूरिस्ट जितने भी आते हैं उनकी रहनुमाई करें। जी बिल्कुल, जिस तरह यहाँ पर इनका कहना था कि 13 पॉइंट्स हैं जो मरी के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्ते हैं, और उन पर ये पूरा स्क्वाड जो है तैनात है। और मरी में जो जुड्डो में गंदम की काश्त शुरू होते ही यूरिया खाद मार्केट से गायब। 3200 रुपए मन वाली यूरिया खाद ब्लैक में 6000 रुपए तक फरोख्त होने लगी, जिसकी वजह से गरीब किसान सख्त परेशान है और फसल की काश्त मुतासर होने का खदशा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे निसार रज़ाराइन से। जी निसार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ताल के झुड्डो में गंदम की बिजाई का अमल जो मुकम्मल हो चुका है,
पर अब गंदम को ज़रूरत है यूरिया खाद की। अफसोस से कहना पड़ता है कि यूरिया भान जुडो शहर में इस टाइम पर अनमोल हो चुकी है। ज़िम्मेदार महंगे दामों में यूरिया भान लेने पर मजबूर है। वही भान जो कि 2 महीने कबल सिर्फ 3200 की मिलती थी, आज ज़िम्मेदार को 6-6,500 की दी जा रही है। इसी हवाले से कुछ ज़िम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। सर, यूरिया खाद जुड्डू में बिल्कुल ही नायाब हो चुकी है, बिल्कुल ही नहीं मिल रही। जिस सेठ के पास जा रहे हैं कोई देने के लिए तैयार नहीं है, और अगर हम ले रहे हैं कोई 3200-3300 का जो रेट है उसमें कोई नहीं दे रहा। 6000 6,500 में सब दे रहे हैं। और अगर हम उनसे बोल रहे हैं कि भाई बिल दो, तो बिल हमें कोई भी नहीं दे रहा। वो बोल रहे हैं भाई बिल नहीं मिलेगा, लेनी है खाद तो लो, वरना खाद आपको हम नहीं देंगे। अब हम ज़मींदार किसको बोलें? जब हमारे जो गंदम होती है तब एसी साहब भी छापे मारता है, एसी साहब भी हमारे पास आते हैं, लेकिन अभी एसी साहब ये मुनाफाखोरों कुछ एक्शन ही नहीं उठा रहे। अभी अगर ये गंदम को खाद नहीं मिलेगी तो गंदम की पैदावार में बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा, जो कि हमारे मुल्क के लिए भी खतरनाक है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने ज़िम्मेदार की बातें सुनी, इन्होंने यही कहा है कि हम डीसी मिप्रो खास और एसी जुडो से ये गुजारिश करते हैं कि इन ज़ीरा को जो मुनाफाखोर है इनके खिलाफ का। नाज़रीन, खानेवाल में कई मंसूबे सियासत की भेंट चढ़ गए हैं। खानेवाल को कबीरवाला से मिलाने वाली वाहद नेशनल हाईवे रोड गुज़िश्ता 12 सालों से टूट फूट का शिकार है, जिससे आए रोज हादसात रौनमा हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ मुसाफिरों को शदीद परेशानी का भी सामना है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अदनान रसूल से। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल का नवाही इलाका है आदिवाला, जहाँ पर नेशनल हाईवे और उसके साथ जिले इंतजामिया की गफलत की वजह से यहाँ का जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है। इस रोड के बिल्कुल सामने जामिया मस्जिद है और उसके साथ यहाँ पर बच्चों का एक प्राइमरी स्कूल है, जिसमें बदबू और ताफुन की वजह से यहाँ के अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर अगर बारिश आ जाती है तो यहाँ का रहना मुश्किल है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर इस वक्त जो धूल और मिट्टी की वजह से यहाँ पे आने जाने वाली गाड़ियों की वजह से इनके जो कारोबार है शदीद मुतासिर है। मजीद उनसे बात करेंगे, यहाँ पे इलाका मौजूद उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे भाई, आप ये बताइएगा, यहाँ पर बारिश भी आ जाती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। इस वक्त सर्दी का मौसम है, धूल मिट्टी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना, गाड़ियाँ गुजरती हैं तो किन परेशानियों का सामना है? जी बिल्कुल, जो हमारे पास यहाँ पे मुश्किलात है ना बहुत ज़्यादा हैं। एक दफ़ा नहीं, ये दूसरी तीसरी दफ़ा यहाँ पे नुमाइंदा आया खड़ा है और सबको पता है कि ये रोड का काम है। यहाँ से बट्टे वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ के हमारे रात बच जाते हैं, दुकानों पे लगते हैं, ठीक है, कहा हुआ भी है, लेकिन फिर भी मज़ीद आपके तावन से या जैसे भी मीडिया के तावन से यही है कि उनके तक आवाज़ जाए ताकि ये भरपूर इसका देखें। पानी यहाँ से गली का अगर बंद हो जाए, गली का आ जाता है, उसकी वजह से नमाजी जाते हैं रोड से गुजरते हैं, उनकी वजह से उनको भी परेशानी है। क्योंकि जब ज़ाहिर बात है जब बारिश आ जाएगी पानी रुकेगा, पानी रुकने से फिर जब गाड़ियाँ गुजरती हैं वो नमाजियों के कपड़े ख़राब होते हैं, बच्चों के यहाँ से उड़ के, अगर मिसाल के तौर पे अगर हम खड़े हैं, अब आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई भी बड़ी गाड़ी गुजरेगी उसका बट्टा उड़ेगा, वो हमारे साथ ही लगेगा। और उड़ते भी हैं, ये नहीं है कि हम कह रहे हैं, सामने दुकान है, हमारी दुकान, मेरी खुद की दुकान पे आके लगा है। तो बड़ी दफ़ा हमने कोशिश की है सबको कहने की और कह भी रहे हैं, और मज़ीद आप भी हमारा साथ दें ताकि ये ज़िला है माशाल्लाह रोड मेन है और ये नहीं है कि छोटा है, साथ ही इंटरचेंज है हमारे पास, बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं। आपकी मेहरबानी होगी अगर ये आवाज़ हमारी सुन लें तो। ये बताएंगे आप नेशनल हाईवे से और डीसी खानेवाल से क्या मुतालबा करेंगे? जी हम तो ये मुतालबा करेंगे कि इसको जल्द और जल्द बनाएं, ताकि ये बनेगा तो ही जाके हमारा कोई तहफ़्फ़ुज़ होगा ना। क्योंकि अब हम तो यहाँ से, अब हम छोटे हैं, हमें तो कोई नहीं ना जानता, लेकिन उनको तक आपकी आवाज़ तो पहुँच सकती है, मीडिया की आवाज़ तो इलेक्शन आते ही सखर शहर में मेगा प्रोजेक्ट्स बनना शुरू हो गए। इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस गुज़िश्ता दौर में बनाए गए मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार हो चुके हैं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद यासिर अंसारी से। जी यासिर, कहिएगा। जी बिल्कुल, सखर के मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जानिब से वक्तन बवक्तन शजरकारी मुहिम का आगाज करके सरकारी खजाने से लाखों रुपए निकाल कर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वो पौधे लगाए जाते हैं। उसके बाद इंतजामिया की जानिब से फोटो सेशन मुकम्मल होने के बाद तमाम सरकारी इदारों के अफसरान अपने जो है दफातर में जाकर ख्वाब खरगोश में सो जाते हैं कि वो लगाए गए पौधे कहाँ गए, कैसे उसकी मनसूबाबंदी होगी या उसकी देखभाल किस तरह होगी। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जाता। इंतजामिया के अदम तवज्जो के बाद वो पौधे जो है वो खराब हो जाते हैं और आवाम के लाखों रुपए टैक्स के पैसे ज़ाया हो जाते हैं। ऐसा ही एक मनसूबा सक्कर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से सक्कर और रोडी शहर को मिलाने वाली एम शहरा जेल रोड पर लाखों रुपए से आवाम के टैक्स के पैसों से पौधे लगाकर शहर को खूबसूरत बनाया गया था, जिसको सक्कर के शहरियों ने बेहद सराहा था। मगर इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस जो है वो लाखों रुपए लागत के जो पौधे हैं
वो मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार हो चुके हैं। शहरियों का यही कहना है कि इंतजामिया अगर मंसूबों की देखभाल नहीं बनू की सर्दी खेल मंडी में निजी फलाही तंजीमों की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद कर दिया गया है। कैंप में अवाम उन्नास की कसीर तादाद ने खून के एहतियात भी जमा करवाए। इस बारे में मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर फहद मोहम्मद खान से। जी फहद, क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, हम यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त सर्दी खेल मंडी में। तहसील बका खेल की मंडी है सर्दी खेल, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह से ब्लड कैंप लगाया गया है और ये ब्लड कैंप रणा फलाही व तरक्याती तंजीम जानी खेल रजिस्टर और पोहा फाउंडेशन सर्दी खेल की तरफ से लगाया गया है। ये ब्लड जो यहाँ पर लोगों से लिया जा रहा है ये बन्नू शहर में होगा और वहाँ पर जानी खेल, सर्दी खेल, बका खेल और दूसरे जो आसपास के इलाके हैं इनके किसी भी मरीज़ को इमरजेंसी ज़रूरत की सूरत में मुफ्त ये खून दिया जाएगा। ब्लड के एहतियात जो हैं लोगों से लिए जा रहे हैं, उनके फ्री टेस्ट भी यहाँ पर हो रहे हैं। सुबह से ये जो प्रोग्राम जारी है और काफ़ी ज़बरदस्ती से जारी है। बहुत ज़्यादा लोग आए हैं यहाँ। जो अरकान हैं पोहा फाउंडेशन और रणा के, वो कहते हैं कि उनकी तवक्को से थाना त्रिंडा मोहम्मद पनाह के एडिशनल SHO आतिफ खान जतोई ने त्रिंडा मोहम्मद पनाह की आवाम का दरीना मसला हल कर दिया है। आतिफ खान जतोई ने मेन बाजार रोड से रेडी बानों का कब्जा खत्म करवा दिया। एडिशनल SHO ने कहा कि ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी गुलाम अली, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर जज्बा हो कुछ कर दिखाने का तो वसाइल और इख्तियारात जो है वो आड़े नहीं आते। ये साबित कर दिखाया है थाना तरंडा मोहम्मद पनाह के एडिशनल SHO आतिफ खान जतोई ने। तरंडा मोहम्मद पनाह मेन बाजार चौक से लेकर गर्ल्स हाई स्कूल तक रोड के दोनों तरफ रेडी बानू ने जो है अरसा दारा से पंजे गाड़ रखे थे और तरंडा मोहम्मद पनाह के शहरियों का ये देरीना मसला था। उनको शहर में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को शदीद अजियत का सामना था। उसके साथ साथ जो है सब सवेरे और छुट्टी के औकात जो है यहाँ से गर्ल्स हाई स्कूल जाने वाली नौजवान तलबात को भी शदीद अजियत का सामना था। रोड पर ठहरे ये औबाश रेडी बान जो है उन पर बेहुदा जुमले कसते थे, जिससे शरीफ शहरियों का और तालिबात का जो है जीना मुहाल बन चुका था। जो काम तहसील इंतजामिया और जिले इंतजामिया न कर सकी, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकत को जो काम सर अंजाम न दे सके, वो कारनामा कर दिखाया है थाना तरंडा मोहम्मद पनाह के एडिशनल SHO आतिफ खान जतोई ने। पस मंजर कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि बाजार का जो 40 फुट कुशादा रोड है वो क्लियर करवा लिया गया है रेडी बानू से, जहाँ पर खरीदारों के साथ साथ जो है तलबात भी आप पुरसकून माहौल में जो है वो स्कूल आने जाने लगी हैं। गुज़श्ता कुछ रोज से ये अमल जो है थाना तरंडा मोहम्मद पनाह के SHO की जानिब से सारे इंजाम दिया गया। यहाँ पर मेन बाजार चौक में जहाँ पर मैं ठहरा हूँ, यहाँ पर 2 मुहाफिज भी तैनात कर दिए गए हैं जो ट्रैफिक की रवानी को बाहर रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है इंटरचेंज मोटरवे M5 तरंडा मोहम्मद पनाह निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की ज़ेर सदारत शाहराह फैसल की खूबसूरती और चकंडी कब्रिस्तान पर इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में वज़ीर सकाफत डॉक्टर जुनैद शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सेक्रेटरी 2C M अब्दुर्रहमान शेख, कराची सलीम राजपूत, आर्किटेक्ट्स अली नकवी, अरशद फारूकी, यावर जलानी, आदिल केरिया, हाफिज हबीब शरीक हुए। इजलास में ये बताया गया कि शाहराह फैसल एयरपोर्ट ता रीजेंट प्लाजा 18 किलोमीटर शाहरा की तज़यीन व आराइश की जा रही है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी फलकनाज अपार्टमेंट्स को मरम्मत करवाएगी। फलकनाज बिल्ड वाले इसी हफ्ते ही काम शुरू करेंगे। वज़ीर आला ने पूरे शाहराह फैसल पर वाक़या फुटपाथ्स और लाइन्स की तज़यीन व आराइश करने, शजरकारी से सरसब्ज करने की हिदायत भी जारी कर दी। इजलास को ब्रीफिंग में यह बताया गया है कि अंडर पासिस की तज़यीन व आराइश, फ्लाई ओवर की डिज़ाइनिंग की जाएगी। निगरान वज़ीर आला सिंध का यह कहना था कि शाहराह फैसल पर जब लोग आएँ तो उनको एहसास हो कि कराची एक खूबसूरत शहर है। DC मलीर और कमिश्नर कराची ने यह बताया कि चकंडी कब्रिस्तान के साथ 30 एकड़ अराजी की निशानदेही की है। 30 एकड़ पर नए कब्रिस्तान पर आइंदा तदफीन होगी। अब चकंडी कब्रिस्तान में तदफीन नहीं की जाएगी।
आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे। डेरा इस्माइल खान के करीब दहशत गर्दों के हमले में शहीद होने वाले मीरवा के सिपाही अमीर हुसैन शर को सपुर्द खाक कर दिया गया है। शहीद की जस्ते खाकी को पाक फौज की निगरानी में अबाई गांव लखीर शर पहुंचाया गया। नमाज जनाजा के बाद फौजी एजाज के साथ तदफीन की गई है, जिसमें अहले इलाका और फौजी अफसरान ने भरपूर शिरकत की। शहीद एहलकार अमीर हुसैन शर पाक फौज में 2011 में भर्ती हुए और गुज़िश्ता रोज मुल्क की हिफाजत करते हुए दहशत गर्दों से मुकाबला करते हुए अपने वतन पर कुर्बान हुए। जर्मन कौंसलेट ने माहीन खान को सिंध बलोचिस्तान कौंसलेट का तर्जमान मुकर्रर कर दिया है। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर लूटर्स ने कहा है कि पाकिस्तान तजारत के मैदान में हमारा साथी है। पाकिस्तान दुनिया के कई ममालिक में अपनी मसनूआत को फरोख्त करता है। निगरान सूबाई वजीर हारिस नवाज ने माहीन खान को जर्मन कौंसलेट का तर्जमान मुकर्रर होने पर बताया कि हुकूमत पाकिस्तान खातिन के लिए काम कर रही है और उनको मौके भी फराहम किए जा रहे हैं। मजीद देखिए ये रिपोर्ट। उन्होंने फोकल पर्सन इसलिए बनाया है कि जो भी ख्वातीन के मसाइल हैं, वीज़ा मिलने का है, कमर्शियल है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, उस सब में वो ख्वातीन की नुमाइंदगी करेंगी जर्मन कौंसलेट में। और बलूचिस्तान का भी इलाका उनको दिया गया है क्योंकि वहाँ पे ख्वातीन में वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो इतनी नहीं है, तो एक टास्क उनको ये भी दिया गया है कि बलूचिस्तान की ख्वातीन में वुमेन एम्पावरमेंट करें। जो इवेंट है वो ऑब्वियसली आप सबको पता है, जैसे कि उन्होंने जर्मन काउंसलेट कराची ने मुझे फोकल पर्सन अपॉइंट किया है और बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए किया है कि जो उनके कमर्शियल वीज़ा के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, और हमारी कोशिश ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट हम उस पर काम करें और उसके साथ ही जो अपने कमर्शियल टाइज़ हैं, बिज़नेस टाइज़ हैं, वो जर्मनी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग करें। तो आई फील ऑनर्ड कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए हमारी कंट्री में एक खातून को अपॉइंट किया जो बिज़नेस के साथ उन लोग के मसले मसाइल को रिजॉल्व कर सके। बहुत अच्छी मिसाल है साहिबजादी माहीन खान की कि उनको जो है वो जर्मन ने नॉमिनेट किया एज ए देयर फोकल पर्सन, और फिर हम लोगों ने इधर तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को इकट्ठा किया। उसकी वजह ये थी कि तमाम उनको एक्नॉलेज करें और इन तमाम लोगों को ये मालूम हो कि हम इस तरह वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर यकीन। आगे बढ़ते हुए खबर आपको देंगे। यंग मीडिया एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एजाज़ में इशाइये का एहतमाम किया गया। इशाइये में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मुजीबुर रहमान शामी, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह, कालिब नगार तौफीक भट्ट, सीनियर सहाफ़ी शाहिद नज़ीर चौधरी, साबिका सदर प्रेस क्लब लाहौर अरशद अंसारी, नायब सदर प्रेस क्लब लाहौर शहराज हसनात, सीनियर पॉडकास्टर हाफिज अहमद, एंकर पर्सन जोहेब सलीम भट्ट, मियाँ इमरान अरशद, आतिफ भट्टी, यासिर रशीद, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाकिर अवान, सीनियर सहाफ़ी अहमद अबू बकर, डॉक्टर हामिद खोखर, डॉक्टर मतीन खोखर, कालिम नकार और बिजनेसमैन इलियास मोहम्मद शेख, सदर यंग मीडिया एसोसिएशन हारिस खोखर, सीनियर नायब सदर डॉक्टर नबीहा अली खान, जनरल सेक्रेटरी मोहसिन शहजाद मुगल, नायब सदर जोहेब ताहिर खान और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कलीम हफीज ने शिरकत की। इस मौके पर सदर यंग मीडिया एसोसिएशन हारिस खोखर का कहना था कि ये तंजीम यंग नौजवान सहाफ़ियों की हौसला अफजाई और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई है। तंजीम में कानूनी तहफ़्फ़ुज़, सेहत, तालीम और दीगर दरपेश मसाइल का हल शामिल होगा। सीनियर नायब सदर डॉक्टर नबीहा अली खान ने तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहा। यंग मीडिया एसोसिएशन की गुज़िश्ता कारकर्दगी के हवाले से भी ब्रीफ किया गया। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम ने अफगानिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में 63 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हुए 48 ओवर्स में। अपडेट करते चले आपको कि अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम ने अफगानिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में 83 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अपडेट करते चले आपको अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम ने अफगानिस्तान को आखिरी ग्रुप मैच में 83 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हुए 48 ओवर्स में 303 रन बनाकर पवेलियन लौटी। ओपनर शाहजेब खान को 79 और शुमाइल हुसैन ने 75 रन बनाए, जबकि रियासुल्लाह 73 रन के साथ तीसरे नुमाया बल्लेबाज रहे। टीम के दीगर खिलाड़ियों में अजान अवैस 20, तैयब आरिफ 6,
इरफात मिनहास 4, सातबेग आमिर हसन 8 रन बनाकर आउट हुए। उबैद शाह 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि मोहम्मद जिशान बगैर कोई रन बनाए ही पवेलियन चल दिए। जवाबी इनिंग्स में पाकिस्तान बाउलर्स के सामने अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन खड़खड़ा गई। पूरी अफगान टीम 49वें ओवर्स में 220 रन के मजमूई स्कोर पर ऑल आउट हो गई। पाकपतन में अंडर 16 एथलेटिक्स के 3 रोजा मुकाबलों का मैदान सज गया है। मुकाबलों में जिला भर के हाई स्कूल के तलबा हिस्सा लेंगे। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक चिश्ती से। जी तारिक, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्ले ग्राउंड में, जहाँ अंडर 16 बच्चों के जो है एथलेटिक्स प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ असाजा मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला पाकपतन में अंडर 16 एथलेटिक्स मुकाबला जात का आज बाकायदा आगाज़ हुआ, जिसमें 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर दौड़ के मुकाबला जात हुए। इसके अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप और बच्चों ने गोला फेंका। तो तमाम इन मुकाबला जात में हाई स्कूल जो ज़िला पाकपतन के थे उनके अंडर 16 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों के भरपूर जोर दिखाए। तमाम भाइयां हर एक थां खेडन दी एथलेटिक में आज अंडर 16 ये जो ट्रायल इस वक्त हो रहे हैं, तो माशाल्लाह सेहत अफजा नतायज उनके हमें बरामद हो रहे हैं। मैं इस हुकूमत के इस इकदाम को सराहता हूँ। मैं बासीयत जो है जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन इंशाल्लाह इसके लिए सदाई कोशा रहूँगा, और इसमें कोई शक नहीं कि इन्हीं में से ही हमारे जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर बनेंगे। आपने जाना कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड पोजीशन में लेंगे उन्हें खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट्स पर आज तारीखी फैसला आलिया ने तारीख रकम करते हुए एक सियासी जमात की तरफ से किए जाने वाले तमाम प्रोपेगेंडा और प्रेशर ग्रुप्स को नजरअंदाज कर दिया है। अपडेट करते चले आपको, सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट्स पर आज तारीखी फैसला आलिया ने तारीख रकम करते हुए एक सियासी जमात की तरफ से किए जाने वाले तमाम प्रोपेगेंडा और प्रेशर ग्रुप्स को नजरअंदाज कर दिया। रियासत का साथ देते हुए सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ किए जाने वाले फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। आज के फैसले से रियासत पाकिस्तान मजबूत हुई है। आलिया ने इस फैसले ने साबित कर दिया है कि मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़े संजीदा मामलात में बिला तासुब और सियासी मफाद के वो सिर्फ रियासत के साथ हैं। हालांकि एक सियासी जमात की तरफ से चीफ जस्टिस और आलिया के इस बेंच के खिलाफ एक मजमूम प्रोपेगेंडा मुहिम रवानी से चलाई जा रही थी ताकि आज के इस फैसले पर मनफी अंदाज में असरानंदाज हो सके। सोशल मीडिया पर होने वाले सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद आला अदलिया ने किसी प्रेशर में आए बगैर फैसला देकर यह भी साबित कर दिया है कि आला अदलिया फैसले सिर्फ मेरिट ऑफ द केस पर देगी, ना कि किसी सियासी लसानी या पर्सनल इंटरेस्ट की बुनियाद पर। इसी पर आला अदलिया काबिल सताइश है और तारीफ के मुस्तहिक है। मुल्क में दहशतगर्दी, इंतशार और सियासी फसादात के पैरोकारों के लिए ये फैसला यकीनन एक बड़ी खबर है, क्योंकि अब उनके खिलाफ कानून आखमी और मजबूत हाथों से अपना रास्ता लेगा ताकि इंतशार और दहशतगर्द अनासिर उनके और सपोर्टर्स पर मौसर तरीके से काबू पाया जा सके। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।